السلام علیکم ناظرین، صبح کشمیر میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں حافظ عبدالبصیر۔ شروعات سے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں میں انتخابی ریلی سے کیا خطاب۔ آخری مرحلے کی پولنگ میں بی جے پی کو ووٹ دینے کی عوام سے کی ہے اپیل۔ کشمیری عوام نے بی جے پی کو کیا ہے مسترد، وزیر اعظم عبداللہ نے دیا بیان۔ اور ڈوڈا کے مختلف اسکولی طلباء کے ساتھ روزہ بھارت درشن ٹور پر کیا گیا روانہ۔ دیگر علاقوں کی تہذیب و تمدن سے واقفیت ہے مقصد، اے ڈی سی ڈوڈا کا بیان۔ اور پیش ہے منصف کشمیر کی تمام تفصیلات۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں میں منعقد کی گئی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کی عوام کی بدولت ہی بی جے پی اقتدار تک پہنچی ہے، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہاں کی عوام کا پیار میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ آج مجھے بھاشن کرنے سے پہلے آپ سے شکایت کرنی ہے۔ کروں کیا؟ برا نہیں مانو گے نا؟ اور برا مان جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ پیچھے والے برا نہیں مانیں گے نا؟ جو اسٹیڈیم میں اوپر بیٹھے ہیں وہ پکا نہیں مانو گے؟ شکایت کرو۔ 6 مہینے پہلے میں خود لوک سبھا کا چناؤ لڑتا تھا۔ دلی میں سرکار بننے والی تھی اور میں جموں میں اسی میدان میں آیا تھا، للکار ریلی میں آیا تھا۔ میں خود چناؤ لڑ رہا تھا، میرا اپنا بھوشیہ طے ہونا تھا، دیش کا بھوشیہ طے ہونا تھا، لیکن اس ریلی میں آدھے لوگ ہی آئے تھے۔ اور آج اس سے بھی ڈبل سے زیادہ آ گئے۔ بتائیے میری شکایت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں جموں کشمیر کا شکایت تو کی، لیکن میں آبھار بھی ویکت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عبداللہ نے کہا ہے کہ وعدے کشمیر کے لوگوں نے بی جے پی کے جھوٹے وعدوں کو خریدنے سے انکار کر کے بی جے پی کی دوغلی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کارگزار صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر میں الیکشن رجحان کو محسوس کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر ارون جیٹلی نے خود اعتراف کیا کہ ان کی پارٹی ریاست میں حکومت بنانے والی نہیں ہے۔ جموں کے علاقے بسوہلی میں پارٹی امیدوار دیوندر سنگھ کے حق میں الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں نے بی جے پی کو مسترد کر دیا، تو جموں کے عوام کو دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی پارٹی نیشنل کانفرنس اور اس کے امیدواروں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ نیشنل کانفرنس امن و بھائی چارگی کے ساتھ ریاست کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا کر سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں 5ویں مرحلے کی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ دیتے ہوئے مضبوط کیا جائے تاکہ دیش کی ترقی کے لیے حکومت آزادی سے کام کر سکے۔ پورے جموں علاقوں کو انہوں نے پریوار وادی راجنیتی کرنے والوں کے یہاں گروی رکھ کے رکھی ہے، اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اب جموں کے لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے جموں کشمیر کو اسیر کیا ہے، جنہوں نے جموں کشمیر کو مضبوط سرکار نہیں بننے دی ہے، ایسے لوگوں کو اب جموں کشمیر کی دھرتی پر، خاص کر کے جموں کی دھرتی پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوئی۔ کشمیر گھاٹی میں وہ جیتتے ہی نہیں ہے، کوئی گزرے نہیں دیتا۔ یہ حال ہے، وہ یہیں پر آ کر کے کھیل کھیلتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان کو پہچان گئے ہو، ان کو پہچان گئے ہو، جان گئے ہو، ان کے ارادے سمجھ آ گئے ہیں، ان کی بدائی کرو گے نا؟ پکا کرو گے؟
भाइयों बहनों, अगर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा, विकास से ही आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करके ही आगे बढ़ेगा, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखेंगे तभी आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार है, आधी अधूरी नहीं, कोई पीछे से घुस जाए ऐसी सरकार। अब मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने दफा 370 के बारे में बीजेपी के मौक़िफ़ को गुमराहकुन करार देते हुए अवाम को इलाकाई और फिरका वाराना तासुब फैलाने वालों से खबरदार रहने का मशवरा दिया। जम्मू के बिशना इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार गुलचेन सिंह चाक के हक में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ मरकजी वजीर सेहत और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने हसास मामलात पर दोगलापन इख्तियार कर रखा है। इन्होंने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात से कबल दफा 370 की मनसूखी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जैसे इक़दाम बीजेपी के लीडरों का तकिया कलाम रहा और जब इस पार्टी को हुकूमत हासिल हुई तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से किए गए तमाम वादे भूल गए। महकमा तालीम डोडा ने जिले डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों के 42 तलबा को 7 रोजा भारत दर्शन तालीमी टूर पर रवाना किया। इस मौके पर एडीसी डोडा इमामुद्दीन महकमा तालीम के अफसरान भी मौजूद थे। इमामुद्दीन ने कहा कि इस टूर के जरिए तलबा को बैरूनी रियासत तर्ज जिंदगी, तहजीब, रहन सहन को देखने का मौका मिलेगा, जिससे इनके तजुर्बात से तलबा को जिंदगी में आगे बढ़ने की तहरीक मिलेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ दूर दराज स्कूलों से बच्चों को चुन के ये भारत दर्शन टूर पे लिया जा रहा है। इसमें 42 बच्चे कुल इनने सेलेक्ट किए हुए हैं और इनके साथ 3 टीचर्स जा रहे हैं। इस टूर का जो मकसद है ये एक इंटर स्टेट और ये नेशनल लेवल का ये कम से कम ये मुआवजा करें अपने इलाके में क्या इनका रहन सहन है, इनकी सोसाइटी और आगे दूसरी जगह जाके इनका वहाँ का रहन सहन, वहाँ के बच्चों का तर्ज जिंदगी देख के ये अपने आप को एक कम्पिटिटिव जिंदगी के लिए तैयार करें। इसलिए इसका बहुत ही एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी है और एक एक्सपोजर इम्पोर्टेंस भी है, ताकि एक एजुकेशनल माहौल के जरिए उससे निकल के क्लासरूम एनवायरनमेंट से निकल के थोड़ा बाहर इनको एक एक्सपोजर विजिट दिया जा रहा है, ताकि ये एजुकेशनल एक्टिविटीज को उधर से आके रिजेनरेशन करें, एक ताज़ा दम होके उसमें दोबारा से आप। उधमपुर में रिवायती तौर पर विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर 1971 की जंग में उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवानों को भी खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने जंग में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया था और हिंदुस्तान को पता हुआ कामयाबी से हमकिनार किया। रीजनल रूरल इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से ठाठरी में 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें दहिया तरक्याती महकमे के आला अफसरान समेत BDO के मेंबरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर दहिया तरक्याती महकमे के अफसरान ने तरबियती प्रोग्राम को पेश किया। आगे वो आपके काम में हमारा लेबर फोर्स बना रहे हैं, अच्छा रहे, हर एक से आप इस तरह मिलता और अस्पताल अपने IC का बजट अलग से लेबर बजट के साथ IC का बजट।
रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर फारूक शाह बुखारी की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले इंतजामिया, पुलिस, आर्मी और BRO के महकमे के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में रामबन जिले में सरमाई अयाम में रोड कनेक्टिविटी, बर्फ को हटाने का काम, बिजली, पानी, मुसाफिरों के लिए शेल्टर्स के क़याम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस आला सतही इजलास में मुख्तलिफ कंपनियों के अहदेदारों ने भी शिरकत की, जिन्होंने प्रोजेक्टों का टेंडर हासिल किया हुआ है। श्रीनगर में कॉलेज की तालिबा पर तेजाब फेंकने के वाक़े से मुताल्लिक़ पुलिस को ताहल कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया और इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसी दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वाक़े की मुनासिब तहक़ीक़ात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने तमाम जिले तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत जारी कर दी है कि वो अपने अपने मुताल्लिक़ा इलाकों में तेजाब की गैर कानूनी फरोख्त पर नजर रखें। गुज़िश्ता 2 दिन कबल बारमूला में तलबा ने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया था। गांधरबल इलाके के बारसो में पुलिस और नौजवानों के दरमियान पथराव की वारदात पेश आई है। बारसो में पुलिस ने पथराव करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए नाकाबंदी की थी। ताहम जैसे नौजवानों को मालूम हुआ, कसी तादाद में नौजवान जमा होकर पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू के इलाके काटरा में वाक़ शिव करूरी ने विष्णु देवी की यात्रियों को काटरा आने के लिए रियासी काटरा रोड खराब होने के बायस सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये रोड इस कदर खस्ता हालत में है कि गाड़ियों को चलना इंतहाई दुश्वार कुन मरहला होता है। इसी के बायस गुज़िश्ता हफ्ते 7 अफराद हलाकत का शिकार हो गए हैं। मुताल्लिक़ा महकमे को बार बार शिकायत करने पर भी इसका कुछ असर नहीं हुआ। काकापुरा में सैलाब से मुतासिर आवाम ने बाज़ाबाद कार्य के लिए एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सैलाब मुतासिर को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करें। अवाम ने कहा है कि बेघर अफराद बंडों पर आबाद हैं, जिन्हों हुकूमत की जानिब से फौरी इमदाद फराहम की जानी चाहिए ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें। हम बंडों पर आबाद सालों से गरीब घराने हैं, जो मछेरे हैं, जिन्हें हम गार्डन्स कहते हैं, या पहले जब तरक्की का दौर नहीं था, आबी ट्रांसपोर्ट था, हम आबी ट्रांसपोर्ट के जराए हमारे थे, हम उनसे ही मुंसलिक थे। हम कश्तीबान हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गीन सालों से जो अजदाद हमारे यही बंडों पे आबाद हुए, जहां आज हम आबाद हैं। लेकिन आज सरकार हालिया सैलाब की वजह से लोगों को आप इससे सेव करना चाह रही है, सैलाब से, जिसमें हम भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा है सरकार से, हमारे पास यही 2-2, 4-4 मरले जमीन है। अब हम इस वक्त अगर हमें उठाया जा रहा है, हम अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चों के लेके कहाँ जाएं? इस वक्त हमें
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हिंदुस्तान को पाक व साफ रखने के लिए मुल्क भर में स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम को चलाया गया, जिसके तहत मरकजी वज़रा और खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने अपने इलाकों को पाक व साफ रखने की अवाम से अपील की थी। ताहम इस अपील का उधमपुर में वाक़े पार्क में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर अवाम की कसीर तादाद आती है। इसके बावजूद पार्क में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुंसिफ कश्मीर में फिलहाल इतना ही है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।